intelligence talks about now digital world. So today we are going to discuss about how are the children going to build the future. And today you see all the students, the children, they are more towards the AI, the digital work, and things happening. So my question is, in a rapidly evolving AI-driven world, how can schools strike the right balance between adopting AI tools and preserving the human essence of teaching and learning? So same question goes to everyone. So we will share our experience and even what we look ahead as a heads of the school and how are we looking in the future as well. So ma'am, please. So thank you so much, and it's a pleasure being here. So last year we had conducted a research on AI in our school using AI tools, and we found that students were enjoying. The learning was pretty good. Learning curve had increased, but they were using it basically to copy terms. Copy paste was also happening. Assessments were not very deep. So we realized that some of the topics which lend itself to AI could be could be incorporated when you do mapping, and some topics should be completely experiential learning based. So that is one way of making sure that there is a sort of a demarcation between AI tools and also using real life experiences. Also, in terms of assessments, how do you do your assessments? Making sure that AI is making it more personalized to each student. So that is one way of another thing that we can do it using AI tools to make learning more personalized. Furthermore, training the teachers across to make sure that AI is not used just offhand, but is used basically to create deep thinking and research-based projects. So that is some ways that we can make sure that AI gives a very humane touch to all our students, and that is exactly what we are working towards. And at Kotak Education Foundation, we are creating a course based on AI for all our schools to use, and delivering it as digital literacy tools to make sure that again learning is not just at this level, a superficial level, but more in-depth level. Thank you. So good evening to everyone. Good evening. Good evening. Can you hear me now? All right. So good evening to everyone. How many of you all use ChatGPT? Everybody? Yeah. So are our students using? Everyone's using ChatGPT. So the first step is to understand really what is artificial intelligence. Because currently we are using artificial intelligence as assistant intelligence. यूनिसेफ द्वारा जो आयोजित शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले प्रधानाध्यापकों उनके निदेशकों को सम्मानित करने का जो यूनिसेफ का कार्यक्रम था, ये अत्यंत अनूठा उपक्रम था। और इसके लिए मैं सरिता गोम्स मैडम, रचना भीमराजका मैडम और विपिन गुप्ता तीनों का अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से तकनीक का विकास और तकनीक के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार में जिस तरह का कार्य हो रहा है, उसको लेकर जिस तरह से शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, वह अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र को और जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका जो प्रयास है वह अभिनंदनीय है। इस तरह के तमाम प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि जो सतत जो है नई पीढ़ी को तैयार करने का काम जो तमाम शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय शिक्षक, अध्यापक, प्रधानाध्यापक जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को संबल मिलने की आवश्यकता है। आज बड़े पैमाने पर मुंबई, महामुंबई क्षेत्र के जो हैं तमाम प्रधानाध्यापक इस कार्यक्रम में जिस उत्साह के साथ उपस्थित हुए, वह भी अत्यंत प्रशंसनीय है। हमारे महाराष्ट्र के संस्कृति और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्रीमान आशीष शेलार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर उन्होंने भी शोभा बढ़ाने का काम किया और शिक्षकों से संवाद साधा। इसके लिए उनको भी साधुवाद, और इस कार्यक्रम में जो शामिल हुए लोग हैं उन सब का जो है मैं अभिनंदन करता हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और कितना प्राउड फील हो रहा है इतने सारे लोग यहाँ पर है? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, एजुकेशन फील्ड से हर कोई यहाँ पर थे, उनको फेलिसिटेट भी किया गया। आशीष शेलार जी थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं 20 सालों से काम कर रही हूँ
और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ से सारे और दूसरे प्रोफेशंस निकलते हैं, बट ये प्रोफेशन को उतना नहीं मान दिया जाता है। तो हमारी संस्था जो UniGIF है वो शिक्षा के क्षेत्र में साल में 2 बार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और जैसे आशीष शेलार जी, शुक्ला जी जो हमारे सरकार के कार्यकर्ता हैं, उनके हाथों से सम्मान मिलता है ना, तो एवरी पीपल नीड्स मोटिवेशन इन देयर लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कि आप 200% देते हो लेकिन उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है। एक ये होता है तो कितने भी थके हुए रहते हैं वो वापस जुट के बच्चों के लाइफ को, अभी मोदी जी ने ये शुरू भी किया है कि कोई बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें हर बच्चे को पढ़ाना है, हर बच्चे को एडुकेट करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, तो कार्यकर्ता अगर आके हम एडुकेटर्स को मोटिवेशन बढ़ाएं, मान सम्मान करें, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम लोग मतलब थैंकफुल हैं शुक्ला जी का, जो आज उन्होंने इतना समय अपने बिज़ी शेड्यूल में से भी इतना समय निकाल के हमारे शिक्षा में काम किया, हमारे समय निकाला। साथ में हमारे साथ एजुकेशनल टूर्स, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल टूर्स के एडवेंचर टूर से भी जुड़े हुए हैं, जो बच्चों को आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलता है, रोड लर्निंग नहीं चाहिए, आप जो करते हो देखते हो, तो ये बच्चों को ही नहीं, बच्चों बड़े सबको दुनिया दिखाते हैं जो हमारी संस्था से जुड़े। आज हमारे साथ सरिता गोम्स जो एक स्कूल की 2 स्कूल्स को हेड करती हैं, उन्होंने UniGIF का मोटिव देखा, विज़न देखा, तो वो हमसे जुड़ी और हमारे महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं। आज बिपिन गुप्ता जी काफ़ी सालों से मीडिया में हैं, हमारा कार्य देख के हम कम से कम 10-12 साल पहले एक ऐसे ही इवेंट में मिले और वो माइन्यूटली हमारे काम को स्लोली ऑब्जर्व करते रहे, और फिर इस काम के इतने बड़े कार्यक्रम में जहाँ पे आज आप सभी ने देखा 200 से भी ज़्यादा लोग थे, 25-30 अंदर थे और 50 लोग बाहर थे क्योंकि अंदर सीट नहीं थी। तो लोगों का इतना अपनापन, इतना प्यार है, नहीं तो आप किसी भी शहर में चले जाएं, एवरी वीकेंड अवार्ड सेरेमनी हो रही है। ये अवार्ड नहीं है, ये सम्मान है। और हमारे राजस्थान में बोला जाता है कि पगड़ी का सम्मान सबसे बड़ा होता है, एक लेगेसी बढ़ती है। सो वो हम लोग, हमारी कोशिश रही है। थैंक यू। सरिता मैम, आप क्या कहना चाहेंगे जो एजुकेशन के अलग अलग फील्ड से लोगों को अप्रिशिएट किया गया, सर यहाँ पर थे, आशीष सर यहाँ पर थे, क्या कहना चाहेंगे? और आपकी बुक का लॉन्च भी हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। आज का ये प्रोग्राम है, ये तो मैं रचना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, जो हम 3 साल पहले हम एक बेंगलोर कॉन्फ्रेंस में मिले और उसके बाद हमारी पहचान हुई। और हमने जब डिस्कस किया तो हम बोले चलो हम भी कुछ आगे सम्माननीय, जैसे एजुकेशन में वी सी दैट देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स एंड दे हैव नॉट बीन, नेवर दे हैव बीन अप्रिशिएटेड। सो ये जो था, ये एप्रिसिएशन टू द एजुकेटर्स था, हेड्स था, जो स्कूल में इतने लोगों को चलाते हैं, बच्चों के माँ बाप, पूरी टीम। सो इट इज़ नॉट 1, it is 1 multiplied by 4. So this movement and this platform, what Rachna ma'am gave me the respect, and she's got collaborated with us as a organizer with मारवाड़ी विद्यालय, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बच्चों के प्रोत्साहन, उनकी पढ़ाई के बारे में जो अब डेवलपमेंट चल रहा है, स्किल होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पर सर एडवेंचर से बेजाद सर हमारे साथ हैं, एंड कोमोटेक से शेखर सर भी, आनंद जी शेखर सर की टीम से हैं। तो दिस इज़ ऑल स्किल बेस्ड लर्निंग। ये रोड लर्निंग जैसे रचना मैम ने बोला वैसा नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सिखाते हैं। मैं एडवेंचर के साथ 1996 से जुड़ी हूँ एंड ओमोटेक से लास्ट 6 ईयर्स से जुड़ी हूँ। और एडवेंचर जैसा जो सेफ्टी, बच्चों का टेक केयर करना, उनके बारे में उनका डेवलपमेंट, ब्रेन स्टॉर्मिंग, उनका डेवलप और उनका बनाना और उनको तरीके का एक्टिविटीज़ देना स्कूल में आके, स्कूल के बाद, ये बहुत है ना, बोलते हैं ना, इट इज़ कमेंडेबल। और शेखर जी का जो रोबोटिक वगैरह सब चलता है, एक्टिविटीज़ जो स्कूल में लैब देते हैं हमें, दे सी द स्कूल एंड दे वर्क फॉर द चिल्ड्रन, दे डोंट वर्क फॉर द मनी, इवन द एडवेंचर। सो और मैं प्रेम शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इतने टाइट स्केड्यूल से उन्होंने हमारी
रचना मैम और हमारी बात सुनी और वो आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे तो प्रोग्राम और हमारे इस इवेंट का रंग ही बदल गया। थैंक यू सो मच। आप विपिन जी कुछ बोलना चाहेंगे? उसके पहले शुक्ला जी मैं कुछ और गुजारिश करना, हमारी ये जो यूनिजेएफ संस्था है, ये इसमें 8,000 से भी अधिक प्रिंसिपल्स और स्कूल ओनर्स जुड़े हैं और हम लोग एक्चुअली दिल से वी वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और हमारे जो गवर्नमेंट है, मोदी जी ने भी बच्चों के एजुकेशन पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे काफ़ी काम करे, तो हमें ये मौका दीजिए कि हम मिलजुल के आपको सपोर्ट करके, देखिए सरकार को भी वैसे लोग चाहिए जो पूरे दिल से काम कर सके। सो वी वुड डेफिनेटली वांट कि इसके बाद हम आपसे आके मिले और कैसे इस कार्यक्रम को हम दुनिया तक पहुंचाएं। जरूर, निश्चित। विपिन जी, पार्टी के तरफ से हिंदी भाषा जो एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको बंद करने की मांग हो रही है, तो आप एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर विपिन जी से पहले बात कर ले। पहले विपिन जी मांग नहीं, बंद नहीं कर रहे, तीसरी भाषा के रूप में उसे ऑप्शन दिया जा रहा है। और प्लीज़ गवर्नमेंट रिलेटेड नहीं, इवेंट रिलेटेड क्वेश्चन। इवेंट बहुत ही ज़रूरी है कि जो व्यक्ति, मतलब कहते हैं ना प्रधानाचार्य, आचार्यों का जो मेन होता है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है वो प्रधानाचार्य होता है, जो न केवल बच्चों को ही अनुशासन में रखता है अपितु उन्हें अनुशासन में रखने वालों को भी अनुशासित करता है। ऐसे व्यक्ति कई बार पर्दे के पीछे रह जाते हैं, उन्हें खुले रूप में जनता के सामने लाना, उनका अवार्ड करना, और ऐसी चीज़ों में जब रचना जी से मेरी बात हो रही थी, मेरा कुछ सृष्टि संस्था के माध्यम से काफ़ी कवि सम्मेलन और गज़ल वगैरह की चीज़ें होती है, तो इनसे जब बात हुई, इनकी चीज़ों को मैंने देखा तो मुझे भी लगा यार कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ पे हम सरकारी लोगों को, कुछ आईएएस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करते वो, और साथ में प्रिंसिपल्स, इन सबको एक मंच पे लाया जाए ताकि उनके मन की भावनाएं बाहर निकले और वहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले भी उसे सुने, और जो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो उस बातों को सुन करके कुछ इम्प्लीमेंट करें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आए। क्या स्किल डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए, ऐसी चीज़ें उनके कानों तक जाए ताकि आने वाले समय में शिक्षा का स्तर और बढ़े। कभी कि इस इवेंट में हमें बुलाया गया, एंड ये इवेंट में हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमने सारे प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स, डायरेक्टर्स को सम्मान दिया है, बिकॉज बच्चा जो होता है वो एक माटी की तरह होता है। उस माटी में कितना पानी डालना है, उसे कैसे सींचना है, उसे कैसे पौधा बनाना है, या तो उसे कैसे मटका बनाना है, ये काम एक एजुकेटर का ही है। और जब तक हम उनको वो पावर और वो सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारा नेशन बिल्डिंग नहीं होगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन के बच्चे अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो शिक्षक ही मेन है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अवार्ड शो था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और सरिता मैम का जो बुक लॉन्च हुआ उसके बारे में अगर कुछ। Yeah. Hello everyone. It is a great matter of honor, privilege and pride for me to be receiving this prestigious award, and it's a good move that teachers, principals, educators are being appreciated, because we feel that appreciation goes really a very long way, and this kind of a summit, which is probably the 11th summit for Rachna Bhimrajka ma'am, and beautifully put together by Rachna ma'am as well as Sarita Gomes ma'am. I would also like to mention the cover page launch of Dr. Sarita Gomes, which happened today in this particular summit, and the kind of articles that will be coming forward will be a contribution from all the educators across the country, all the pedagogies. Really looking forward to the book launch, and at the same time looking forward to having my article as well as a part of that. Really very privileged to be a part of this and receiving such a prestigious award. Thank you very much to the entire organizers team. It was a great opportunity for us to be here, and being here with all the pan-India educators, that was something which is very good. Staying in Maharashtra, getting Maharashtra Bhushan Award. Thank you very much. Signing off, Dr. Ushawati Shetty, C4 Synergy. Thank you. मैम के लिए और स्पेशली फॉर दी सरिता मैम के लिए जिन्होंने हमें वी पार्टिसिपेट हियर, तो जहाँ पे हमें पता चला कि कितने सारे हमारे प्रिंसिपल्स, एजुकेटर्स, दे आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन कैटरिंग सो मेनी फील्ड्स, जहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हर प्रिंसिपल्स का, हर एजुकेटर्स का एक अलग अलग स्किल लेवल है जहाँ पे बच्चों को आगे लेके जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।
सो दिस इज़ वी आई थिंक ये बहुत काफ़ी बार होना चाहिए, इट इज़ रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ताकि हमको एक मौका मिले कि हम बच्चों को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं और बच्चे कितने लेवल पे आगे आ रहे हैं और सोसाइटी को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं. थैंक यू.